Okay, let them join. Okay, so what it is now? So what you have studied regarding Aishwarya? So I said you to read, no? What you have studied? स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स का बारे में क्या क्या पढ़ा है अभी? In primary structure, one or the more polypeptide chains are the formed, and in second, they are folded with secondary polypeptide chains. tertiary कैसे लग रहा है बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर? इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? सर थ्योरी पार्ट है इसलिए इजी लग रहा है। हाँ, इजी। क्या बोल रहे हो पूजा? समझा नहीं पूजा। सर थ्योरी की वजह से इजी लग रहा है सर। थ्योरी का तो यही रहेगा एग्जाम में। यस सर, यस सर। हाँ, सो तुम्हारा क्या है ऐश्वर्या? इजी लग रहा है सर। एल्डिहाइड्स कीटोन से कंपेयर किया तो हाँ, कैमरा ऑन करो पूजा और निखिल। रीडिंग पार्ट है सर। रीडिंग पार्ट है कौन सा? बायोमॉलिक्यूल्स। यस सर। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बायोमॉलिक्यूल्स जो स्ट्राइट क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसमें आप लोग को ज्यादा घुमाते नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को ऐसे घुमाएगा कि पता नहीं चलेगा कि कौन से एग्जाम लिख रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप लोग देखो वीडियोस, देखो बार बार देखो। हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ओके? डोंट वरी अबाउट दैट वन, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। निखिल पढ़ना है तो नहीं तो एग्जाम आई विल नॉट अलाउ यू टू राइट एग्जाम। हाँ, क्लासेस को बीमारी है तो क्या ऑनलाइन अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो, बैठ के सुनना है ना? या कहीं कोरोना तो अटैक नहीं हो गया? हाँ, सर आंसर नहीं दिए तो फिर वो काटेंगे सर, इसलिए लेके। ऐसे तुम आंसर आज भी किधर दिया? मैं बोल रहा हूँ किधर है निखिल, किधर है निखिल, कितने 2-3 मिनट तुम्हारा पूछने में गया मेरा। हाँ, अटेंड करो, ठीक है? और वॉच रिकॉर्ड, यू वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोस, ओके? नाउ वी विल गो टू दी स्क्रीन। अभी पता नहीं विदिशा का क्या हुआ। लेट्स कंटिन्यू where we are. This presentation, this one, you know. Okay, so regarding structures we will see now. Pooja, can you see screen? Yes sir. Okay, structure and shape of proteins. So I have given you a little bit brief idea about that one. Their structure consists of 4 different levels, okay? Different type of structures. One is primary, another one is secondary, then tertiary, then quaternary. So what is primary? Primary structure of proteins. Proteins may have one or more polypeptide chains. This sequence of amino acids is said to be the primary structure of that protein. So what is primary structure? For example, we have seen glycine, alanine, okay? Glycine, alanine, like that. Or it can have like alanine, valine, histidine, like that. It is a one polypeptide. This is another one. So one or more polypeptide. If these two are forming hydrogen bonding, and as a like, for example, fiber it is forming, those are the fibrous proteins. So this is the primary structure of that particular protein. This is primary structure. So if it is more than, so this one is basically the whatever the primary unit, major unit, that is called the primary structure. Secondary structure. So this secondary structure is basically 2 types it is, okay? Secondary structure is basically, it is 2 types, and secondary structure is made up of by whom?
by from primary structure only secondary structure will be formed. Here try to understand secondary structure will have two types. So before that one we will go to the point. The secondary structure of protein, the secondary structure of protein refers to the shape. वो किसको रेफर करता है? शेप को रेफर करता है, इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट. तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड इन द सेंस जो बॉन्ड है CONH बॉन्ड, दैट इज ओनली द पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड. अगर बहुत सारा अमाइड ग्रुप्स है उसमें पॉलीपेप्टाइड है, सो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट. दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स. ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप्स है. ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो व्हाट आर दैट वन? Alpha helix and beta plated sheet structure. So the second structure basically divided into the two types, alpha helix and beta plated structure. So what is that one? Please try to understand what does it mean here. Alpha helix structure, beta plated structure. So this is the alpha helix and another one is the beta plated. So basically alpha helix structure में क्या होता है? helix मतलब क्या है? So this is the structure of DNA. Okay, I will show anyhow at the time of DNA. So this is the shape of helix shape it is. Okay, what it is? Helix shape it is. ये helix shape है. ये का बात कर रहा हूँ. I am talking about the only one. Okay, this is complete DNA that we will study in the nucleic acid. ये जो shape है, so ये जो shape है उसको helix structure बोलते हैं. ये एक स्ट्रेन का बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओनली वन स्ट्रेन. और इधर एक एमिनो एसिड है. ओके, एक स्ट्रेन में इधर एक एमिनो एसिड है. व्हाट डज इट मीन? हेलिक्स शेप, लाइक स्क्रू, लाइक दिस. ओके, हेलिक्स स्ट्रक्चर. ओके, और यू कैन से इट एज ए लाइक दिस स्ट्रक्चर, लाइक दिस. सो ये जो शेप्स है इसमें इधर एक एमिनो एसिड है. फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर हैविंग NH2 CH2 COOH. ठीक है, और इधर एक एमिनो एसिड है. फॉर एग्जांपल इधर एक एमिनो एसिड है CO एसिड, मैं इस साइड लिख रहा हूँ COOH CH2, इधर कोई भी R ग्रुप लिख दो NH2. ओके, इधर एक एमिनो एसिड है, इधर एक एमिनो एसिड है. ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए कोशिश करेगा. What it will do? This will try to form the hydrogen bonding from this to this one. So due to that one, what happens? That will take the shape of spherical shape. Which shape that will take? That will take this type of helix shape. This is called the alpha helix shape only. And this bonding is called the internal hydrogen bonding. Internal hydrogen bonding. Internal hydrogen. So ये सभी स्ट्रेन्स है. इधर एमिनो एसिड्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स. इधर एक एमिनो एसिड है, इधर एक एमिनो एसिड है. ओके, लाइक दिस. सो उसका वजह से ये पूरा प्रोटीन फॉर्म हो रहा है एंड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ फॉर्म करेगा. फॉर एग्जांपल येलो के बाद रोज, ब्लू, येलो, उसके बाद फिर इधर रोज आ जाएगा, उसके बाद फिर ब्लू, ये वाला ऐसा सीक्वेंस में रहेगा. सो ये मॉलिक्यूल एक का ये मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर शेप लेगा. सो दैट इज व्हाट द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ये सब एक पार्ट जो भी है, ओके, ये सब ये जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, फॉर एग्जांपल इधर मैंने येलो के बाद लिखा है पिंक, ब्लू. दिस मींस द डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स. ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर. उसके साथ जो भी बना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स मतलब ये जो शेप है इसको हेलिक्स शेप बोलते हैं, मतलब स्क्रू टाइप का. जो स्क्रू देखा होगा आप लोग राइट हैंडेड और साइड का स्क्रू. सो उस टाइप ऑफ का जो शेप्स रहते हैं उसमें इस टाइप ऑफ का शेप्स जैसे रहेगा. सो उसी फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए वो कोशिश करता है. ये हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. ये कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा? जब, सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दी अल्फा हेलिक्स. तो अल्फा हेलिक्स में फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे 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 लिखा है. अगर ये इधर का एसिड, ओके, इधर का एमीन, इधर का एसिड, इधर का एमीन अगर पास पास में है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है. देन दैट विल हैव द स्फेरिकल शेप. बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये पास पास नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा? व्हाट दैट विल डू? दैट विल स्ट्रेच आउट. दैट विल स्ट्रेच आउट. That will stretch out in the sense इधर से लिखता हूं मैं. ओके, इधर से इधर से इधर से ऐसे. सो इसमें क्या हो रहा है? इधर एसिड है फॉर एग्जांपल, इधर अमीन है फॉर एग्जांपल.
सो इधर क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। ऐश्वर्या क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इट इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। सो इतना दूर बढ़ने से इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए कुछ पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, देयर विल नॉट बी पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल नॉट बी प्रेजेंट इन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो क्या करेगा फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में इस टाइप ऑफ का इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेच आउट हो गया, व्हाट एवर द प्रोटीन इज देयर, व्हाट एवर द स्ट्रेन इज देयर, दैट इज स्ट्रेच्ड आउट। सो व्हाट इट दैट विल डू, दैट विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अनदर वन, अनदर एमिनो एसिड के साथ वो क्या करे, अनदर प्रोटीन के साथ वो क्या करेगा, दैट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आई राइट लाइक दिस, ओके, ऐसा इस टाइप ऑफ का शीट्स टाइप का एक बन जाएगा। अब क्या करेगा, इधर का जो एमिनो एसिड है, सो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, लाइक फॉर एग्जांपल इधर आई विल राइट द ग्लाइसिन, इधर लेट मी राइट द ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH, और इधर एक एमिनो एसिड लेट्स टेक एज ए एलानिन, एलानिन का लेता हूं मैं इधर। सो एलानिन का लिया फॉर एग्जांपल ये वाला, सो एलानिन का क्या रहेगा इधर, NH2 CH CH3 COOH। सो व्हाट इट विल फॉर्म हियर, ये दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, ये दोनों का बेसिकली ये दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लाइक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रा हाइड्रोजन, ये इंट्रा हाइड्रोजन, ये आर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर सॉरी इट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स इनसाइड ओनली, वन ओनली। इधर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट का आ रहा है, सो डिफरेंट डिफरेंट का कभी भी आता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा उसी में जो है उसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन। ये इंटर मतलब अलग अलग प्रोटीन्स का बीच में वो फॉर्म कर रहा है। सो उसका वजह से क्या हो जाएगा, वो शीट टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका जो दिखाया मैंने इस टाइप ऑफ का, ये बीटा प्लेटेड का ही एग्जांपल था, बेसिकली ये बीटा प्लेटेड का ही एग्जांपल था। अल्फा हेलिक्स का जो मैंने ये बोला है, ये अल्फा, तो ये किससे बना है, फाइबर से। जो फॉर एग्जांपल ये कलर देख सकते हो, ये एक कलर है, ये क्या हो गया, एक एमिनो एसिड फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन हो गया, इसको इमेजिन कर सकते हो एलानिन, ओके। दूसरा कुछ कलर है तो उसको इमेजिन कर सकते हो वो वैलिन, सच टाइप ऑफ, उसके साथ अगर वो इस टाइप ऑफ का हेलिक्स इस टाइप ऑफ का हो गया, सो फॉर एग्जांपल लाइक दिस शेप, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड मतलब क्या हो गया, सो दिस इज हाउ शेप। सो देन टर्शियरी का क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बिकम टर्शियरी, वो फोल्ड हो रहा है, so this is like it is folding, so that is the tertiary one. Quaternary मतलब क्या होता है, what it is the quaternary, quaternary केस में different type of proteins when it is forming, that is the quaternary. Hope it is clear now, what is the alpha plated, what is the beta plated means, is it clear all Yes, of you? Nikhil, Pooja, Aishwarya, Yes, sir. okay. So that's what about the alpha helix and beta plated sheet structure. In alpha helix, polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-handed screw. जो right screws का जो right-handed रहते, right-handed screw, उसको बोलते हैं हम लोग helix basically, right-handed screw का। उसी शेप में आप स्क्रू में देखेगा तो इस टाइप ऑफ का रहेगा उसको ऊपर, that is only the alpha. In beta structure, all peptide chains are stretched out. So मैंने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, stretched out कर दिया, stretched out to nearly maximum, so maximum distance extension, and they light side by side. So due to that one, what happens, they light side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonding. So hydrogen bonding will form intermolecular hydrogen bonds in a sheet like structure, sheet like structure, okay. Beta plated sheet structure of protein, okay. ये एक एमिनो एसिड हो गया NH, okay, एक एमिनो एसिड, इधर का एसिड, इधर का एमिन के साथ क्या हो रहा है, वो ये जो प्रोटीन में जो दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन राइट, उसमें जो अमाइड बॉन्डिंग है CONH, वो जो ऑक्सीजन है, ये एमिन का जो इधर अमाइड का जो NH है उसके साथ क्या कर रहा है वो, दैट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्फा हेलिक्स में क्या होता है बेसिकली, जो नाइट्रोजन इधर का जो NH है तो इधर का वो फॉर्म करेगा नेक्स्ट CO कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल
इधर कहीं पे इधर आके कहीं ये इधर ऑक्सीजन ऐसे अल्फा हेलिक्स में, बट डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है उसका वजह से वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. Next, tertiary structure of proteins. So what is tertiary structure of protein? The tertiary structure of proteins represents overall folding of the polypeptide chain. What is the tertiary structure of proteins represents overall folding of the polypeptide chain, that is further folding of the secondary structure. Further folding of the हम लोग डिस्कस किया secondary structure का जो further folding हो रहा है, that is it gives rise to two major molecules, shapes, fibrous and globular. It will give the shapes like that. So quaternary structure means some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains. So different type of polypeptide chains, different type of proteins basically. Polypeptide chain is nothing but proteins only. More polypeptide chains referred to as subunits, क्योंकि उसमें अलग-अलग type of amino acids present रहते हैं. एक प्रोटीन है उसमें एमिनो एसिड्स है NH, alanine, glycine and alanine. So another that will come. So for example, और एक दूसरा आ जाएगा, इसमें रहेगा वैलेन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, दस टाइप ऑफ सीक्वेंस रहेगा. ये सब इसको टुगेदर हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ proteins. ये this is one of the polypeptide chain, this is one of the polypeptide chain. Together basically we call it as a quaternary structure of protein. So this is all about the different type of this one. Okay, this is how, this is the primary unit of amino acid. We can see, okay, you can have blue, red, green. Okay, you can see these are the basically primary units. So this is the secondary structure means क्या है, this is the beta plated structure. For example, एक amino acid है और दूसरा amino acid के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फॉर्म कर रहा है. Okay, so what is tertiary structure? This one. Okay, ये जो एक है, this one is एक पार्ट जो है ये वाला, ये पूरा इसको डिनोट करता है, ये कंप्लीट. इसमें क्या हो रहा है, यू कैन सी दैट इन टर्शियरी. सो दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज सेकंड. टर्शियरी में क्या हो रहा है, ये फर्दर फोल्ड हो रहा है लाइक दिस, जैसे ऐसे फोल्ड हो रहा है, दैट इज टर्शियरी. क्वाटर्नरी में क्या हो रहा है, व्हाट इज इन क्वाटर्नरी, डिफरेंट टाइप, ये अलग कलर का आ गया इधर. इट मींस दैट दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन. This is the so this is the quaternary. So I hope it is clear now. What is primary? What is secondary? What is tertiary? What is quaternary? Okay. Next, are you able to hear me, Pooja? Yes, sir. Next, denaturation of proteins. What is next concept? Denaturation of protein. What is denaturation of protein means? When प्रोटीन इज सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज. सो प्रोटीन को हम लोग फिजिकल चेंज अगर चेंज किया, फिजिकल के चेंज इन द सेंस उसका स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट थे अगर उसको सॉलिड किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया, पीएच चेंज किया, ये सब फिजिकल चेंजेस होता है. लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस आल्सो लाइक चेंज इन पीएच. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब. जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, ओके, जो हम लोग देखा था इसमें बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में, इट वाज हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर वो बॉन्ड्स अगर ब्रेक किया प्रोटीन्स में, so that means that you are subjecting to that particular protein into the change in the physical changes and chemical changes. Due to that one, what happens, जो globulous fiber proteins है, globulous, they unfold, and helix, जो helix है like this helix shape, that get uncoiled. Why it is helix? Due to the hydrogen bondings. अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को ही आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय गिविंग सम टेम्परेचर, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देन यू कॉल इट एज ए योर डीनेचरेशन. जो उसका नेचर है उसको आप लोग डीनेचर कर रहे हो. सो नॉट ओनली दैट वन, इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी आल्सो दैट विल लूज. ओके, दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. व्हाट इट इज, ग्लोबुलस जो भी हम लोग देखा था फोल्ड, वो सब अनफोल्ड किया, हेलिक्स का अनकाइल्ड हो गया, प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकंड डिग्री एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड. सो कौन सा जो बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट रिमाइन, दैट विल बी इंटैक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल that is made up of glycine, alanine, valine, ये सब कॉमन है. फॉर एग्जांपल उसमें एमिनो एसिड
sequence is like this only. Okay, so this is the primary unit. ये सब sequence में तो disturbance नहीं होगा. So फिर क्या disturbance होगा? So what it will be disturbed? The shapes of the helical shapes will be disturbed, or further folding will be disturbed. So this only is good. So due to that one, the whatever the energy values this is having, so that will be remain intact. So that is the reason what it is says, where it is proteins basically in albumin, in white egg it is having the proteins, globular proteins, which are helical structure, double helical structure, and second tertiary, all these it is having in such types. But what is happening if you giving the heat, if you boil, what it will happen? That will become like this shape. इधर liquid form में था, इधर ये solid होगा. But still this is having the energy values as like the raw egg that will have the same way the boiled one will have. So only thing, for example, it is having second degree and tertiary. This is having the sequence of glycine, alanine, and valine type of sequence. This will have. So that is the reason it is having the same proteins as like the raw egg is having. Okay. Is it clear to all of you what is the denaturation of protein? Because it is also important topic. Denaturation of protein is also important topic. Is it clear to all of you? Yes, sir. Nikhil. Pooja, is it clear to you what is the denaturation of protein? When you are subjecting to the change of that particular Yes, pH state, so if you are subjecting to the change, that will lose the biological activities, but that will retain the, and physical state also that will change, but that will retain the protein values as like the earlier ones. So for example, best example is the boiling of the egg. And next topic. What is happened to the Vidisha Pooja? Vidisha को क्या हो गया? रोहिणी Vidisha को. So she sent message in group, sir. So what she sent? I didn't see. Let me check. Didn't give any reason, sir. So watch the recorded video मतलब क्या हो गया? Okay. So next important topic is nucleic acid. What is next one? Nucleic acid. So nucleic acid. So we have seen till now carbohydrates. We have seen carbohydrates. Next we have seen the proteins. What is the next concept? Important topic is nucleic acid. So in this lesson you can break it these type of three parts and you can read it out. So nucleic acid. So best example is DNA and RNA. These two only called the nucleic acid. DNA stands for deoxyribonucleic acid. RNA stands for ribonucleic acid. In the name itself, it is coming the nucleic acid. So what is basically this nucleic acid chemical composition that we will see in this topic? The particles in nucleus of the cell. So you have seen in the bio classes or in the 10th, 9th, 8th classes, you have studied about the cell. Okay, so every human being, every plant, every animal, it is having the made up of cells only. The particles in nucleus, जो न्यूक्लियस रहते हैं सेल का बीच में सेंटर में न्यूक्लियस रहते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह XYZ जो भी प्रेजेंट रहते हैं, जो न्यूक्लियस है उसमें the particles in nucleus of the cell responsible for heredity. जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, जो सेल का अंदर जो न्यूक्लियस है, that is the responsible for heredity. So what is the meaning of heredity? क्या पता है heredity का बारे में? पूजा, what do you know about the heredity? Do you know anything about the heredity, Pooja? क्या है heredity का मतलब? Which comes from generation to generation. Very good, excellent. Okay, so what it is, if our parents are taller, so if you are also becoming taller, that means that is the heredity. Okay, fair, each and everything. Okay, retaining of the hair. All these are the comes under the heredity. So this heredity are called the chromosomes. So chromosomes are present where it is basically inside the nucleus of the cell. So by whom these chromosomes are made make up? So which are made up of proteins रहते हैं. Chromosomes में क्या रहते हैं? Proteins and
सो प्रोटीन्स का बारे में तो हम लोग पढ़ लिया. सो अनदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल. So along with the proteins inside the nucleus in the chromosomes, what are the present? Another type of biomolecules called the nucleic acids. Hope it is clear. Now chromosomes are made up of proteins and nucleic acids also. So for example, male is having कौन सा chromosomes रहते मेल में? ऐश्वर्या कौन सा chromosomes रहते मेल में? XY sir. हाँ. सो ह्यूमन मेल में XY रहते, हाँ फीमेल में XX रहते. सो लाइक दैट. सो जो भी जो क्रोमोसोम्स है वो किससे बना हुआ है? फ्रॉम बाय whom it is made up of proteins and the nucleic acids. So these nucleic acids are mainly two types. So important one is DNA. So this DNA you might have studied so many times. Deoxy, the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Deoxy का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसका मतलब है. सो किसमें जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें से अगर एक ऑक्सीजन नहीं है उसको डीएनए बोलते हैं. सो व्हाट इज आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो लेट अस सी द chemical composition. So we are studying the chemistry, we are not studying about the biology, but we are interdisciplinary concept. It is we are interrelating with the biology and we are reading. So here chemistry you have to focus. Okay, so complete hydrolysis of what is basically composition of DNA and RNA. Complete hydrolysis of DNA means अगर वो पानी के साथ reactions करके if you do hydrolysis of DNA yields pentose sugar. Pentose sugar. What you are getting from the DNA? Pentose sugar. So what is pentose sugar means? What it is the pentose sugar means? Pooja, what do you think? Aishwarya, I think she doesn't have good internet connection. What is pentose sugar means? Pooja, Aishwarya, क्या है pentose sugar का मतलब क्या होता है? So when we hydrolyze the DNA, we are getting the pentose sugar. So they are saying that pentose sugar. So क्या है pentose sugar means? Pooja, can you unmute yourself? Sir, simple sugar, sir. हाँ? अब pentose का मतलब कितने कार्बन्स है उसमें? That's what I am asking. 5, sir. 5. हाँ 5. So what it is? Pentose sugar means 5 carbons are present. Hexose sugar. Hexose sugar means कौन है? Hexose sugar means 6. कौन सा है? एग्जाम्पल कौन सा है हेक्सोस शुगर का? व्हाट इज एग्जाम्पल फॉर हेक्सोस शुगर? RNA. शुगर. सो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप थोड़ा इंटर कनेक्ट करो. कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग पढ़ा था. क्या है ऐश्वर्या हेक्सोस शुगर? हेक्सोस मतलब कितने कार्बन्स है? पूजा. पूजा यू टेल यार. ऐश्वर्या यू म्यूट प्लीज. तुम क्या बता रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हेक्सोस, हेक्स का मतलब कितने है पूजा? 6 सर. हाँ. सो कौन सा है वो हेक्सोस शुगर जो C6 के साथ बनता है? ग्लूकोज. सर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो वही पूछ रहा हूँ यार, वही पूछ रहा हूँ मैं. हेक्सोस शुगर कौन सा है? ग्लूकोज. सो व्हाट इज पेंटोस शुगर? पेंटोस शुगर जो है जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट है. हु इज पेंटोस शुगर? जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट है. सो डीएनए में कौन सा है 5 कार्बन के साथ? फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन दिस वन COH, 5 कार्बन्स लिखता हूं मैं. ओके 1 2 3 4 5. ठीक है. इधर तक तो CH2OH है. As a glucose I have written this one as a glucose only, but here how many carbons are there? 5 carbons only there. In glucose 6 carbons. So if I write like this HOH HOH. मैं हेक्सोस का पूछ रहा था पूजा. आई एम नॉट आस्किंग यू टू विच आई हैव नॉट टॉट. जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था उसी से पूछ रहा हूं मैं.
मैं C6H12 O6 लिखने के बाद ही बोल रहे हो तुम ग्लूकोज। हेक्सोस शुगर कौन सा है? हेक्स कार्बन्स के साथ 6 कार्बन्स के साथ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और कुछ नहीं है। ओके, सो दिस इज राइबोस। एज लाइक ग्लूकोज 5 नंबर कार्बन के साथ जो है उसको बोलते हैं हम लोग राइबोस। जो इधर का कॉन्फ़िगरेशन देखेगा तो H इज कमिंग एट दी लेफ्ट साइड, सो इट विल बिकम डी राइबोस। एल राइबोस मतलब ये H को उस साइड लेकर जाओ, वो H को इस साइड, ये सभी को H को अगर राइट साइड लेकर आए वो हो जाएगा हमारा एल राइबोस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी डी राइबोस। होप इट इज क्लियर। राइबोस COH CH OH CH OH CH OH and CH2OH। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जाके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन उसके शिफ्ट होगा। सो उसका वजह से क्या बनेगा, हमें ये जो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। सो आई विल राइट दिस वन एज ए C123 CH2OH CHO। ओके ओके, ये ऐसे वन। ओके, अगर H इस साइड है, वो H इस साइड है, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं? तो सब लोग टाइप करो चैट मैसेज में। अल्फा अल्फा लिख दो या बीटा। अगर H लेफ्ट साइड आ रहा है, वो H राइट साइड आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा, हाँ वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी राइबोस। ओके, अगर वो H इस साइड है, H उस साइड है, उसको बोलते हैं हम लोग बीटा डी राइबोस। Hope it is clear because in alpha D glucose we have seen the structures of that one, alpha and beta। इसी को मैं कितने नंबर ऑफ कार्बन है इधर? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें? 5 नंबर कार्बन है। 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन। और ये जो CH2OH है एज ए वो सब्स्टिट्यूशंस रहेगा। सो मैं इसको 1 2 3 4 5 ये सब एक रिंग जैसे लिखना है मुझे, और ये CH2OH वगैरह सब्स्टिट्यूशन है। अगर इसको मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में इफ आई हैव रिटन दिस वन, सो आई कैन राइट लाइक दिस वन। ओके, और बेटर वेट। ओके, अभी इसको जो H लेफ्ट साइड है उसको किधर लिखना है मुझे? ऊपर लिखना है, OH नीचे लिखना है। ओके, और OH H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, CH2OH इस कार्बन जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वो CH2OH और ये हाइड्रोजन है। ये हो जाएगा हमारा अल्फा डी राइबोस। क्या हो गया हमारा? अल्फा डी राइबोस। बीटा डी राइबोस मतलब क्या होता है? बीटा डी राइबोस मतलब इधर H रहेगा हमारा, इधर वो H रहेगा। होप इट इज क्लियर, अल्फा डी राइबोस एंड बीटा डी राइबोस। इज इट क्लियर टू पूजा? Aishwarya, is it clear to you? Okay. Yes, sir. हाँ, so that is the alpha D ribose and beta D ribose. So हमारे DNA में कौन सा रहता है? बेसिकली बीटा डी राइबोस रहता है। What it will be there? Beta D ribose. So according to this statement, pentose sugar is coming. Okay, we will see the structure before of that one. What we will have? Pentose sugar we will have, and what else we will have? Phosphoric acid we will have. We will have phosphoric acid. So phosphoric acid मतलब क्या होता है? Basically H3PO4. If I write the structure of this one, PO, OH, OH and OH. H3PO4, phosphoric acid, PO, OH, OH, OH. Okay. In 15th group elements, you have studied regarding this one in P block elements. This is a phosphoric acid. आपको क्या मिल रहा है? पेंटोज मिल रहा है। Okay, OH, H, H, OH, H, OH and
CH2OH and what else H. This is called the pentose. This is called the phosphoric acid. किसको हम लोग डीएनए को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये सब मिल रहा है हमें. व्हाट एल्स? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. और भी क्या मिल रहा है हमारा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. उसको बेस बोलते हैं. नाइट्रोजन कहीं पे भी हम लोग क्या बोल रहे थे, वो बेस हो सकता है. सो हेट्रोसाइक्लिक मतलब होता है जो एरोमेटिक रिंग्स है. फॉर एग्जांपल, सो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है जस्ट, ओके, ये हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग ये है. दिस इज द बेंजीन रिंग. नाइट्रोजन इज ए हेट्रो एटम. सो कार्बन का जगह में नाइट्रोजन आ रहा है, दैट इज हेट्रो एटम. ऑक्सीजन इज ए हेट्रो एटम, लाइक दैट. सो इस टाइप ऑफ का जो भी है उसको बोलते हैं हम लोग बेसेस. और इधर डबल बॉन्ड्स भी रहेगा, डबल बॉन्ड्स. इधर CH3 रहते हैं, लाइक दैट. डिफरेंट डिफरेंट बेसेस आर प्रोड्यूसिंग. सो इट इज क्लियर नाउ डीएनए इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर. क्योंकि हम लोग डीएनए को ब्रेक करेंगे तो हमको क्या क्या मिल रहा है? पेंटोज शुगर मिल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड बेसेस. दैट्स यू आर गेटिंग. In DNA molecules, deoxyribonucleic acid, the sugar is beta D2-deoxyribose. What it is? Beta 2 deoxyribose. Where beta position is जब OH लेफ्ट साइड रहता है वो साइक्लिक होने के बाद उसको बीटा बोलते हैं. That we have. And D कब बोलते हैं? जो CH2 को OH के ऊपर जो H और OH का कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब से हम लोग अगर H लेफ्ट साइड है उसको D बोलते हैं, अगर H राइट साइड है उसको L बोलते हैं. So like that. So at second position पे क्या हो रहा है इधर? At second position in the sense. So what I have written, ribose का क्या लिखा है मैंने? Okay. OH. What it is here? H. इधर क्या है? H और OH. इधर क्या है? H और OH. इधर क्या लिखा है मैंने? CH2OH और H. ये हो गया राइबोस. ये हो गया सिर्फ राइबोस. सो डीऑक्सीराइबोस मतलब क्या होता है? दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन. जो सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन गायब हो रहा है, सिर्फ इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, देन वी कॉल इट ए डीऑक्सीराइबोस. Whereas in RNA molecule it is beta D ribose. अगर मैंने OH लिखा है वो क्या हो जाएगा? बीटा डी राइबोस. डीऑक्सीराइबोस मतलब जिसमें ऑक्सीजन है. तो क्लियर है. अभी आरएनए में क्या है? ऑक्सीजन रहते इधर सेकंड पोजीशन पे जैसे सिंपल राइबोस में रहते, बट डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. Hope it is clear now. You can see the structure. This is the beta D ribose. It is in which it is present. This is present in RNA or DNA. ऐश्वर्या किसमें प्रेजेंट रहते ये? बीटा डी राइबोस. पूजा ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं? बीटा डी राइबोस. पूजा DNA सर. बीटा डी राइबोस डीएनए में कैसे रहते हैं ऐश्वर्या? हाँ आरएनए. हाँ आरएनए. डोंट गेट कंफ्यूज यार. यू आर आई थिंक फीलिंग स्ट्रेसिंग. यू नो आंसर्स, बट कभी मैं पूछता हूँ तू उल्टा आंसर्स बता रहे हो. तुम्हें उल्टा समझाना पड़ेगा मुझे. तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट, बट व्हेनेवर आई एम आस्किंग द क्वेश्चन बेस का पूछ रहे हो तो ये एसिड बताते हो, मुझे फिर गुस्सा आ जाता है. हाँ मैं अभी तक क्या समझा रहा था? बीटा डी राइबोस आरएनए में रहते हैं. राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस जिसमें प्रेजेंट है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए में कौन सा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी मतलब इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन नहीं है सेकंड पोजीशन में, इधर OH है, बट सेकंड कार्बन पे इधर सिर्फ H है. वही डिफरेंस है. होप इट इज क्लियर नाउ. पेंटोज शुगर. सो अभी हम लोग देखा था राइबोस के बारे में. नेक्स्ट बेसिस. डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस. सो क्या है वो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन. सो रिगार्डिंग एडेनिन, guanine, cytosine and thymine you might have studied in the bio, but who are not bio students, for them I will explain. DNA contains four bases. For example adenine. So bases भी present है किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ. वो कैसे स्ट्रक्चर रहेगा? that we will see that structure.
So 4 bases visualize: adenine, guanine, cytosine and thymine. Who are there? Adenine, guanine, cytosine and thymine. एडेनिन उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए के साथ, एंड गुआनाइन उसको हम लोग डिनोट करते हैं जी के साथ, एंड साइटोसिन विच इज सी, एंड थायमिन इट इज टी. ये सब बेसिस भी प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट के साथ. ओके, सो इसका रोल क्या है वो सब हम लोग देखेंगे. डीएनए कंटेन्स adenine, guanine, cytosine and thymine. RNA contains 4 bases. 4 bases. वो कौन सा है? The first 3 bases are the same. कौन सा है? adenine, guanine, cytosine के same है. But thymine is not present in RNA. But in the place of thymine उसमें present रहते uracil. What it will present? uracil present रहते. जो DNA का जो स्ट्रक्चर है ये सब present रहते. So क्या है इसका रोल? ये basis है. ओके, इसका ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. ये दिस विल फॉर्म एडेनिन है, वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टी के साथ. ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्म करता है, एडेनिन फॉर्म करता है थायमिन के साथ, और गुआनाइन फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दी साइटोसिन. ये टी, ये क्या है? जी एंड सी. एडेनिन फॉर्म करता है थायमिन के साथ. लाइक फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर इन दिस वन. Okay, this is the basically structure of the DNA that we will see. These are the bases. ये सभी जो different colors आपको दिख रहा है ये bases है. And this is made up of whom? This is made up of carbohydrate and phosphate का जो composition है उसके साथ ये strains बना हुआ रहता है. ठीक है, अभी ये क्या है? Just imagine this one green one as a adenine. Okay, इसमें जो एडेनिन पार्ट है, ये वाला पार्ट में एडेनिन, वो दूसरा वाला जो टी पार्ट है थायमिन रहते हैं उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म करता है. इधर यू कैन सी 2 स्ट्रेन्स, यू कैन सी दैट मींस दैट ये 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, जस्ट इमेजिन इट एज ए गुआनाइन, दिस ब्लू वन. ओके, इफ यू इमेजिन इट एज ए साइटोसिन, दूसरा का ये साइटोसिन है, उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. यू कैन सी हियर 3 बॉन्डिंग्स, 3 G, guanine and cytosine. इसलिए वो पेयर्स फॉर्म होता है. What it will be? पेयर्स. फिर से ये एडेनिन किधर आ रहा है? ये वाला सेकंड वाला इसमें फिर इधर आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है, ये वाला स्ट्रेन में इधर आ रहा है. अगर ये आ रहा है तो इस स्ट्रेन में क्या आ रहा है? देखो टी आ रहा है. जैसे इधर ये में जैसे टी है, इधर इसमें टी आ रहा है. So टी is coming here. So like that you can see hydrogen bondings here. That's how it is taking the helical shape, and the A will be paired with the T only. A will not paired with the G. This is in the case of DNA. But RNA केस में क्या रहता है? ये T नहीं रहता है, बल्कि there will be uracil, U रहते हैं. So क्या है वो structures that we will see that one. How DNA structure of composition that will be that we will see. So before of that one. Okay, so this is how the structures are look like. Adenine structure is look like. You don't worry much about this structures. No need to worry about that one. If it is possible, you can remember. If it is not possible, you should know that adenine, thymine, guanine and cytosine and uracil, all these are the bases. क्योंकि you can see NH2, okay, NH, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, बट जो रिंग के अंदर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म नहीं कर सकता. यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट वन. सो कौन फॉर्म करता है? जो NH2 फ्री NH2 और NH है, ओके, जिसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है उसके साथ बॉन्ड्स फॉर्म करता है. सो फॉर एग्जांपल एडेनिन है, ओके, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ. ओके, इसके साथ इसके साथ फॉर्म करेगा हाइड्रोजन. दूसरा किधर फॉर्म करेगा? ये जो हाइड्रोजन, ये वाला, इसके पास 2 नाइट्रोजन है विच कैन फॉर्म द 2 बॉन्ड्स. इसलिए एडेनिन क्या कर रहा है? थायमिन के साथ ही वो पेयर अप हो रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, यू कैन सी. और कुछ पॉसिबल
नहीं है इसमें, और कुछ पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं, इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, ग्वानाइन और साइटोसिन ये के फॉर्म हो रहा है टी के साथ, और जी ग्वानाइन फॉर्म कर रहा है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। इसमें कितने फॉर्म कर सकते हैं बॉन्ड्स? देखो ये वाला, ये हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, इट कैन बी लाइक दिस, और ये वाला फॉर्म कर सकता है इसके साथ NH2 like that. Okay, so this is how structures are the adenine and thymine, and guanine can form with the cytosine. Okay, wait 1 minute all of you. Is it clear to all of you what is adenine, what is thymine, what is cytosine? Yes, sir. Okay, here you can see that guanine is forming with the cytosine 3 bonds फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये सभी, और ये सभी स्ट्रेन में क्या क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, और वो फास्फेट के साथ भी है, और जो बेस है वो दूसरे बेस के साथ हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। दैट इज हाउ ये वाला जो स्ट्रेन है ये वाला उसके साथ ऐसे फॉर्म कर रहा है। वो 2 bonds 3 bonds कैसे आ रहा है? बेसिकली बेस्ड अपॉन द इधर का ऑक्सीजन का, इधर का हाइड्रोजन का, एमीन का जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज फॉर्मिंग इधर से इधर, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 फॉर्म कर रहा है, इधर लाइक 1 और इधर से एक 2 लाइक दैट, और इधर से एक 3 से लाइक दिस। ओके, इसके साथ नाइट्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला नाइट्रोजन के साथ भी फॉर्म कर सकता है लाइक दैट। Okay, so this is the structure of adenine, this is the structure of thymine, this is the guanine. Adenine and guanine is bicyclic rings, means एक 6 membered ring है, एक 5 membered ring है, but changes किधर है? ये वाला इधर NH2 है और इसमें कीटो है, but इसमें amide functional group basically, इधर इसमें amide नहीं है like that. साइटोसिन एक ही रिंग है and thymine also एक ही रिंग, इट्स ये, और यूरासिल थायमिन इज डिफरेंट। सो क्या डिफरेंस है? इधर स्ट्रक्चर तो इट्स मिस्टेक इज देयर हियर, CH3 नहीं है इसमें। ठीक है, यूरासिल में इधर CH3 नहीं रहता, यू करेक्ट दैट वन व्हेन यू राइट द नोट्स, क्योंकि ये सेम दिया हुआ है। वो किस में रहते हैं? RNA में रहते हैं यूरासिल, टी का जगह में यूरासिल रहते, 4 बेसिस के साथ फॉर्म हुआ रहते। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं दैट वी विल सी नाउ। नाउ यू हैव द आइडिया दैट DNA is forming of pentose sugar and phosphoric acid like phosphates we can say, and one base, जो bases कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म होके helical structure, how helix structure how it is forming, that we have seen a unit formed by the attachment of a base, your unit formed by the attachment of a base to फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जो फर्स्ट पोजीशन रहते, सो हु इज द फर्स्ट पोजीशन? दिस वन इज द फर्स्ट पोजीशन, OH H H OH H OH CH2OH एंड H, ये है ना। तो इसमें कौन सा? ये फर्स्ट कार्बन। अगर इस पोजीशन पे अगर बेस आ रहा है, बेस, सो दैट वी कॉल इट एज ए न्यूक्लियोसाइड, वी कॉल इट एज ए न्यूक्लियोसाइड। So nucleotide का मतलब क्या है? That also we will see. When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5th position of sugar moiety, we get a nucleotide. So nucleoside का मतलब हम लोग देखा है अभी, क्या है nucleoside का मतलब? Sorry. Okay, 5 membered ring it is. Here base like in the sense adenosine, thymine, कोई भी बेस अलग अलग वो सीक्वेंस में रहते हैं। एक टाइम पे ये आया, दूसरा टाइम पे G आ सकता है, उसका अपोजिट टाइम पे T वाला रहेगा, लाइक दैट। ये वाला बेस चेंज होते रहेगा, दैट विल कीप चेंज। सो बेस है, इधर क्या है लिखना है मुझे? H लिखना है, HOH HOH। ओके, DNA में तो ये ऑक्सीजन नहीं रहता, यू हैव टू टेक केयर दैट वन। RNA में इधर OH रहते हैं, एंड इधर क्या बोल रहे हैं? बेसिकली ये जो C इधर H है, ये जो CH2 है, CH2 ये जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल है, बेसिकली इट इज CH2OH। और फास्फोरिक एसिड का मतलब क्या है? बेसिकली
OH OH OH। सो इधर का ये निकाल दो आप लोग, OH इधर से AH, लाइक दिस वाटर मॉलिक्यूल ये वाला, लाइक दिस, इसको निकाल दो। सो एस्टर बनेगा, फास्फेट का एस्टर बनेगा, ये फास्फोरस का एस्टर। सो हमके क्या मिलेगा इधर डायरेक्टली, इफ आई राइट दिस वन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओके, बेस H H OH, if it is in RNA, if it is in DNA H you have to write H OH, और मुझे इधर क्या लिखना है CH2O PO OH OH, ऐसे। वो क्या करेगा फिर दूसरे मॉइटी के साथ फिर लिंक, ऐसे पॉलीमर्स बनता रहता है क्योंकि हमारा पास लॉन्गेस्ट स्ट्रेन्स है ऐसे, एंड दीज आर द वेरी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सो बहुत सारा ऐसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ रहते हैं। सो क्या क्या है हमारा पास डीएनए और आरएनए में, एक बेस है लाइक एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल सॉर्ट ऑफ bases are there, and this type of phosphate group is there, and ribose, and we call it as a nucleotide, we call it as a nucleotide, जिसमें फॉस्फेट की भी है, फॉस्फेट एस्टर भी है, जिसमें बेस भी है। न्यूक्लियोसाइड मींस फॉस्फेट वाला नहीं रहते, इसमें सिर्फ बेस रहते, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली न्यूक्लियोसाइड, वी कॉल इट एज ए न्यूक्लियोसाइड। होप इट इज क्लियर नाउ, यू कैन सी हियर क्लियरली हाउ इट इज, दिस वन इज द न्यूक्लियोसाइड इट इज। सो बेस इज देयर, बेस, दिस कैन बी ए आर टी आर जी आर सी आर, ओके। इट इज आरएनए केस, फॉर एग्जांपल वो है आरएनए केस है तो इसमें टी नहीं रहेगा बल्कि यूरासिल रहेगा। What it will be there? It will be uracil. So this is the nucleoside. A is the nucleoside. So what is nucleotide? Nucleotide when it is forming the ester with the phosphoric acid. So CH2O PO O-। So O- लिखा है क्योंकि वो बेसिक कंडीशन में क्या है, वो फिर पॉलीमर के साथ अटैच रहेगा लाइक दैट, वो फिर कनेक्शंस रहेगा। और अगर बेसिक कंडीशन है तो सिंपली ओपन सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह उस टाइप ऑफ का रहेगा। Nucleotides are joined together by, okay, nucleotides are joined together by phosphodiester linkage, phosphodiester linkage between 5 and 3 carbon atoms of the pentose sugar. The formation of a typical dinucleotide is shown here. So dinucleotide, ये भी nucleotide है, so this is also nucleotide. Basically what is happening, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, सो ये क्या कर सकता है, ये फिर इसके साथ भी बॉन्ड बन सकता है, फिर एस्टर इधर से भी फॉर्म कर सकता है क्योंकि इधर भी OH है। सो लाइक दैट इस टाइप ऑफ का इधर भी लिंकेज फॉर्म कर सकता है। कौन सा कार्बन पे, 5th कार्बन पे, ओके। हियर इट इज द 5th कार्बन, हियर इट इज द 3rd कार्बन between 5 and 3rd कार्बन atoms of the pentose sugar. Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage, okay, phospho इधर एक ester linkage है, इधर एक ester linkage है, okay, here also ester linkage you write here O like this, okay, P double bond O के साथ वो ester linkage between carbon atoms of the pentose sugar. The formation of a typical dinucleotide, so you can say it as a typical dinucleotide. ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, सो बेस का नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है, सो वेर ये वाला जिसमें फॉस्फेट भी है, इसमें पेंटोस शुगर भी है, ये सब बेसिकली इफ यू सी हियर वेर इट विल बी, ये इधर रहते, इसके अंदर रहते, इसके अंदर ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, ये वाला बेस पार्ट है, इसमें क्या क्या है, सो व्हाट इट इज हियर इन दिस वन, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट भी है, बेस बाहर आके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया गया है। एडेनोसिन एंड थायमिन के बीच का 2 बॉन्ड्स रहते एंड जी ग्वानिन एंड साइटोसिन का बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वजह से ये दिस इज टेकिंग दिस टाइप ऑफ हेलिक्स शेप, it is called the helix shape. 2 strains I say form, okay, and this type of DNA only decide whether you are male or female, or what color you are having, what height you are having, weight you are having, each and everything is decided by DNAs only. Okay, so this is about the structures. I hope it is clear what is the structure of chemical composition of DNA. All of you type in chat message, all किधर है, इधर तो 3 ही लोग हैं. Is it clear, Aishwarya, to you?
हम आरएनए के बारे में अभी थोड़ा पढ़ेंगे, सो वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. Yes, sir. Okay. Next. Okay, as a simplified version of nucleic acid chain is shown below. So you can write it as sugar. So this is a ribose sugar, a base है. Okay, as a strain, it is a strain. जैसे strain पूरा. फॉस्फेट दूसरा शुगर के साथ फिर फॉस्फो डाइएस्टर, इधर से एक एस्टर बॉन्ड, इधर से एक एस्टर बॉन्ड, दोनों साइड से पकड़ सकता है वो. और जो बेसिस है ये सेम टाइप ऑफ का जैसे इधर है, सो इधर से भी सेम जैसे इधर है ऐसे इमेजिन करो, इधर भी एक बेस रहेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन का बॉन्डिंग की वजह से वो हेलिकल शेप होता है. एज ए सिंपलर वर्जन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन शोन बिलो. बेस मींस ATGC. फॉस्फेट मींस वी हैव सीन फास्फोरस विद ऑक्सीजन, जो भी एस्टर्स जो फॉर्म करता है. ओके, n नंबर ऑफ मींस सो मेनी दैट विल कंबाइन एज ए पॉलीमर दैट विल फॉर्म. Information regarding the sequence of nucleotides in the chain of a nucleic acid is called primary structure. So whatever the information of that sequence is there, whatever the sequence, so कौन सा base है इसमें, इधर कौन सा particular sequence follow कर रहा है, so that is called the primary structure. So particularly maintain कर रहा है, उसके बाद फिर repeat हो रहा है जो maintain कर रहा है. So for example इधर ये आया, उसके बाद G आया, so वो दोनों को primary structure बोल सकते हो. उसके बाद फिर ये G आया, उसके बाद T आया, उसके बाद C आया, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लाइक दैट, ये GTC. ये दूसरे स्ट्रेन के साथ T के साथ फॉर्म करेगा, ये C के साथ फॉर्म करेगा, ये T आ रहा है, फिर इधर ये रहेगा, इधर G रहेगा लाइक दैट. सो ये वाला जो सीक्वेंस है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आल्सो. न्यूक्लिक एसिड्स हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आल्सो. सो ये एक स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है. सो न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब जेम्स वो क्या है, दैट जस्ट नाउ आई हैव शोन यू द मॉडल, नो द सेम वे, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक gave a double strand helix structure for DNA, as like I have shown you this one only the double strand. Okay, this is single strand, agar both hai that is the double strand helix structure for DNA. So for this work they got Nobel Prize. For this work only they got Nobel Prize in 1920s. You can see here, this is how one strain, this is the another strain, this is the second structure. So this is whatever we have seen, whatever this is we have talked about this one only. Phosphorus रहे थे, पेंटोस शुगर रहे थे, उसके साथ along with that one base. So ये सभी bases है which are having the nitrogens, they will form the this one double helix of DNA. Two nucleic acid chains are wound about each other. So two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond between pairs of bases. This we have discussed already. एक दूसरे के साथ पकड़ा हुआ रहते, pairs of bases, like ये T के साथ रहते, G C के साथ रहते. The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases. ये T के साथ ही फॉर्म करता है, G C के साथ ही फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए one is complementary to the another one. So that sequence, अगर एक साइड complement in the sense ये T के साथ आया, so अगर T है इधर, वो ये के साथ रहता है, like that. Adenine forms hydrogen bonds with the thymine, which is T, ये, whereas cytosine forms hydrogen bonds with the guanine. In secondary structure of RNA, so here this is all about the DNA. In RNA case, we are talking about the now RNA case. Helices are present which are only single strand. So RNA में क्या है, DNA में क्या है, basically like this, like this, like this. Okay, but RNA में ये नहीं रहता है, RNA में double stranded नहीं रहते, उसमें क्या रहते, सिर्फ single strand रहते. Sometimes they fold back on themselves to form a double helix structure also. So ये वाला क्या करेगा फिर, ये फिर two types हो जाएगा, two types like this. Okay, ये single है, but वो extend होके sometimes it happens, sometimes like this. ये वो extend हो सकता है. They fold back on themselves to form double helix structure also. Whenever the diseases are happening, some mutations are happening, some genetical changes
Okay, whenever cancer patients, so all these are some changes will happens in this change in bases only. अगर ये के साथ T नहीं है, वो उसका जगह में कुछ G आ गया, कुछ और आ गया, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स नहीं है, ये सब अबनॉर्मल केसेस है. ये सब कैंसर्स में होता है. जेनेटिकल चेंजेस का वजह से जो भी बच्चा पैदा होगा उनका कुछ ड्वार्फिज्म है और सम diseases है. Genetical, you might have studied regarding genetical changes. All these are that one regarding this basis only. RNA molecules are of three types and they perform. So RNA molecules, we are studying about the RNA molecules are of three types and they perform different functions. RNA molecules perform different type of functions, but DNA decides. DNA decide करता है क्या उसका हेरिडिटी का क्या है, उनका हाइट क्या रहेगा, उनका वेट क्या रहेगा, उनका लड़का होगा या लड़की होगा, एवरीथिंग विल डिसाइड बाय डीएनए ओनली. बट आरएनए का रोल्स अलग रहते, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. दे आर नेम्ड एज मैसेंजर. वो एज ए मैसेंजर, मैसेज को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के लिए वो काम करता है. एंड राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. ओके, three types. What it is that one? Messenger as a messenger and ribosomal RNA and transfer RNA जो की ट्रांसफर करता है मैसेज whatever the प्रोटीन्स, लिपिड्स जो भी है एज ए ट्रांसपोर्ट टाइप का एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर आरएनए. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. DNA is the chemical basis of heredity. So this is based upon the all these chemical molecules only decide the heredity of that particular generation. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms. So different species of organisms, human being will be different DNA. Okay, lions will have different DNA. Elephants will have different DNA. Each and everything is depend upon whom? This DNA only. The identity of different species of organisms over million of years. A DNA molecule is capable of self-duplication during cell division, and identical DNA strands are transferred to daughter cells. So what it is means that one cell is division. Okay, division is happening. So the same DNA molecules can be maintained here. So that is getting doubled. Okay, the division, self duplication. इधर जो डीएनए का सीक्वेंस रहेगा, इधर भी वही बेसिस वही सीक्वेंस के साथ रहते हैं. सो विच आर दी, ये सेल का जो डाटर सेल्स है उसमें ये डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन and identical DNA strands are transferred to the daughter cell. Another important function of nucleic acid is the protein synthesis. So nucleic acid का और एक रोल क्या है, वो प्रोटीन को इवन सिंथेसिस भी करता है. That will synthesize the even proteins also. Like we have seen the different type of proteins, peptide bonds के साथ. Who will synthesize? Nucleic acids only will be synthesized in the cell. Not all. Okay, few in the cells. Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell. Who in the cell जो भी RNA है, various RNA, they will synthesize the protein. But the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA. So which protein need to be synthesized? Who will decide? That message is stored in DNA. DNA only decide which protein need to be synthesized. But who will synthesize? Basically RNA only will synthesize that particular protein. Okay, so this is about the total biomolecule chapter, and we have completed our syllabus also. Biomolecules. So who has joined? Rohini and Vidisha, you also have joined. At the end you have joined, at the end of the class at least. This is about, so you both need to watch the video because nucleic acid topic we have covered. So I will post now only. Whenever you are having the time today only you sit and today only you watch. Rohini and Vidisha, you both. So these three are present. I don't know Nikhil are hearing or not. So there is one concept that fingerprint of DNA. So the DNA which I am having, that your DNA may be different. The sequence of DNAs will be different. Okay, like for example in this DNA, okay, the sequence will be different. ये जो मेरा sequence है, अगर adenine thymine है, so जो sequence follow करता है वो different रहेगा मेरा केस में और तुम्हारा केस में. Like that fingerprint DNA we call.
So whenever the crimes are happened, so what they will do, they will collect DNA from hairs or whatever the stains, blood. Everywhere DNA is present, everywhere cells is present, everywhere cells are present means nucleus is present. Nucleus में क्या है, chromosomes present है, chromosomes में कौन सा है, ये chemical molecules से present है. So we are made up of chemical molecules. Bases के साथ बना हुआ है, carbohydrate के साथ बना हुआ है, proteins के साथ बना हुआ है. It's all about the, we are nothing but chemistry. Okay, so this is how different people will have different type of DNA. So this is called the DNA fingerprint. As like fingerprints, the fingerprints which I am having, your fingerprints may be different. The same way the coding of the DNA, वो कैसे DNA का structure रहता है, that will be different for the different human being. Okay, it is very simpler chapter. It compared in the organic chemistry topic, you will get easily 5 marks if you cover the each and every topic. सब in text करो, सब exercises करो. NCERT का पहले you go through that one. जो topics syllabus से remove किया, you don't worry about much about them, like vitamins, hormones, the sort of things has been removed, and polysaccharides, oligosaccharides, these are the removed. Disaccharides, polysaccharides. So you no need to much worry about that one. Whatever it is there in the syllabus, that you go through that one, easily this will bring you 5 marks. ये 5 marks आपका hand में है. So most easiest chapters now, biomolecules and surface chemistry. These two chapters are very simpler chapters. You can get easily 9 marks out of these two chapters. 9 marks. These two chapters. Okay, so this is how, if you are having the doubt, you can ask me, or after watching the recorded videos also, if you are having the doubt, you can ask me. Okay, so this is how we have completed our syllabus. Total our syllabus is completed. The best thing is this year is that I have posted, I got the opportunity to record the videos. Means it is the one time it is. So in next students, what I will do, I will give these videos to them only in next year. If corona, if it is continuous also, I will simply post these videos. So you take the benefit of that one. You can imagine outside students are asking me, sir, please give your videos. We wanted to, because we are not understanding the chemistry. What our chemistry sir is teaching, we are not understanding. Sir, please give your videos. So like that. So you can understand the importance of that one. Because each and every topic I am explaining. बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको जो टॉपिक्स रिवाइज करके, जो पहले क्लासेस में डिस्कस किया, वो सब रिविजन्स करके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज क्लासेस. क्लासेस आर डिफरेंट, यूट्यूब वीडियोस आर डिफरेंट. यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ पढ़ाते जाएगा, आपके साथ इंटरेक्शंस कुछ नहीं रहते. और जो मैं 5-6 घंटा ले रहा हूँ क्लासेस, वो उधर आपको 1 ही घंटा में मिलेगा. एंड यू कैन इमेजिन वेरी एक्सप्लेनेशन विल बी मोर. If you are under impression that if I don't go through these videos also, if you learn from the YouTube, कुछ नहीं होगा. Okay, you can see in the YouTube. So 30 days organic chemistry, 20 days कोई भी नहीं कर पाते. लिखने के लिए क्या, कोई भी कुछ भी लिख सकते. Okay, and many students watch these videos. जो 10th स्टूडेंट्स है वो बोल रहा था, सर हम लोग क्या पढ़ा रहा है केमिस्ट्री सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जो एक्सटेंस स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो लोग, सर हम लोग यूट्यूब वीडियोस से देख रहे हैं वगैरह XYZ. उससे क्या रहेगा, तुम्हारा बेसिक्स नहीं रहेगा. ओके, इफ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन गो एंड अटेंड फॉर द फिजिक्स क्लास, एंड वी विल स्टार्ट द रिवीजन क्लास फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री. यू विल हैव द एग्जाम ऑन द एमीन्स मंडे आपका एमीन्स का एग्जाम रहेगा. गूगल फॉर्म्स आई विल शेयर यू द टाइमिंग. क्लास नोट्स एंड होमवर्क नीड टू बी पोस्टेड नाउ. इफ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी, otherwise you can go. And I will post the worksheets also. Okay, are you hear me Pooja, or just I am talking only? No sir, we are hearing sir. Okay, worksheet